Good morning students. Yesterday we have completed our exercise 9.1. Today we are studying some extra questions from some applications of trigonometry. Okay. This question will come in 2017. Because this question was come in 2017. Okay. If at some time of the day the ratio of the height of a vertical standing pole to the length of its shadow on the ground is √3:1, then find the angle of elevation of the sun at that time. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि if at some time किसी एक समय में of the day दिन के the ratio of the height of a vertical standing pole का के हाइट का रेशियो टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो उसके शैडो से ऑन द ग्राउंड जो कि ग्राउंड पे बन रहा है इज √3:1 है, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, देन यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम. सन का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है. सो फर्स्टली ड्रॉ द फिगर कैसे बनेगा? लेट दिस इज द वर्टिकल स्टैंडिंग पोल एंड दिस इज इट्स शैडो और एंगल ऑफ एलिवेशन दिस. ठीक है, इसको हमने क्या लेट कर लिया? दिस इज योर थीटा. एंगल ऑफ एलिवेशन हमने क्या लेट कर लिया? थीटा. द पोल इज AB and the shadow is BC. You have to find the value of theta. आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन समझ में आया? क्लास में क्वेश्चन रेशियो ऑफ द स्टैंडिंग पोल, वर्टिकल स्टैंडिंग पोल, यानी ये जो वर्टिकल स्टैंडिंग पोल है ये AB अपॉन BC का रेशियो इट इज गिवन टू यू √3/1, √3:1. Then you have to find the value of theta. तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, let the vertical standing. Ma'am, may I write the question? Yes, pole is, let the vertical standing pole is AB and its shadow is BC. So एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए. if at some time of the day the ratio of the height of a vertical standing pole to the length of its shadow on the ground is √3:1, then find the angle of elevation of the sun at that time. Done? क्वेश्चन हो गया बेटा? Yes, ma'am. Okay, now let the vertical standing pole is AB and its shadow is BC. So their ratio is what? Ratio क्या हो जाएगा इसका? AB upon BC is equal to √3/1. This is your given. ये आपको given है बेटा? ये समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now take both side 10. दोनों तरफ हमने 10 लिया. अब हमने 10 क्यों लिया? This is your height and this is your base. हाइट और बेस का रेशियो किसमें होता है? साइन में, कॉस में या टेन में? हाइट और बेस का रेशियो 10 में. That's why I take 10. इस
both side 10. ओके, इसीलिए हमने 10 लिया बिकॉज 10 इज द रेशियो ऑफ हाइट एंड बेस. 10 AB upon BC is equal to 10 root 3 upon 1. 10 AB upon BC is equal to 1 minute. यहाँ पर हम इसको लिखेंगे रूट 3 ओनली. रुक जाइएगा. ओके, AB upon BC is equal to root 3 upon 1. It is given to you and tan theta is equal to AB upon BC from figure. Figure से ये हमें आ गया. Then इसकी वैल्यू यानी AB upon BC की वैल्यू tan theta हम यहाँ पुट करेंगे. Tan theta is equal to root 3 upon 1. रूट 3 10 में किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है. tan 60. तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं रेशियो वाले. तो पहले आपको रेशियो लिख लेना है. देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू होता है AB अपॉन BC हाइट अपॉन बेस. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में AB अपॉन BC बोथ इक्वल है, इसके tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 1 लिखा. tan थीटा इज इक्वल टू 10 में किसकी वैल्यू रूट 3 होती है? इट्स tan 60 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 60 डिग्री. Solution is clear to you, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Done? Solution is done also? Yes, ma'am. Ma'am. Okay, now the question number 2 is from the top of a heel. From the top of a heel, the angles of depression of two consecutive kilometer stones due east are found to be 45 degree and 30 degree respectively. Find the height of the heel. Then you have to find the height of the heel. This is your heel. Okay. कितना डिग्री होगा ये बेटा? एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस 45 डिग्री. 2 डिग्रीज का बता रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. इज इट? इफ दिस इज 30 डिग्री देन व्हाट अबाउट दिस? दिस इज आल्सो 30 डिग्री. And if this angle is 45 degree, then this angle is also 45 degree. Okay? Because of alternate interior angle. Okay? The heel is AB, and the consecutive stones. The first stone is D, and the second stone is C. Consecutive means क्या होता है? What is the meaning of consecutive? लगातार. तो अगर अगर ये 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है तो C कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा? हील से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा. इज इट? है ना? Yes, ma'am. अगर ये हील है, मान लीजिए ये हील का बॉटम है, अगर पॉइंट जो फर्स्ट स्टोन है D B से 2 किलोमीटर पर होगा तो C कितने किलोमीटर पर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? बिकॉज बोथ द stones are
in consecutive kilometers, तो c कितने डिस्टेंस पर होगा? 3 किलोमीटर पर होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको अच्छे से बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर ये हमने x लेट Yes, किया, ma'am. अगर हमने b से d x लेट किया, देन b से c का क्या किलोमीटर हो जाएगा? x plus 1. Is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा फिगर में ही सब चीजें, फिगर अगर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, देन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन आल्सो। ठीक है? So let the height of the hill is h. ठीक है? The first stone, the distance of first stone be x kilometer and the second stone is x plus 1 kilometer. Angle of depression मैंने निकाल लिया कि जो सेकेंड स्टोन है वो उससे 30 डिग्री बन रहा है और जो फर्स्ट स्टोन है उससे 45 डिग्री बन रहा है। Okay, now let us solve our question. Question is clear to you and figure is also clear to you. Now solution. Yes, ma'am. This question, Yes, ma'am. ये क्वेश्चन भी आपके 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, in 2017. Let AB is the height of the hill and x plus 1 respectively. ठीक है? ये तो आपका हो गया स्टेटमेंट. Let AB is the height of the hill, that is h, and the two consecutive kilometer stones are D and C, and their distance are x and x plus 1 respectively. Now in triangle ABC, in which triangle? ABC. Tan 30 degree is equal to h upon x plus 1, that is AB upon BC होगा. Is it? Yes, ma'am. ये AB upon BC बार बार लिख देंगे. This is your equation 1. Now in triangle ABD, what happened? Tan 45 degree is equal to AB upon BD. 45 की वैल्यू 1, h upon x, that is x is equal to h, equation 2. From equation 1 and 2, 1 upon root 3 is equal to h upon x plus 1. 1 upon root 3 is equal to, what is the value of h? That is x. X upon X. x कॉमन ले लिया, root 3 minus 1, x is equal to
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, x is equal to root 3 plus 1 upon 3 minus 1. X is equal to root 3 plus 1 upon 2 kilometer. That is the height of, this is the height of hill also. So the height of hill is root 3 plus 1 upon 2 kilometer. The solution is clear? Yes, ma'am. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिगर प्लस स्टेटमेंट प्लस सॉल्यूशन, ये सब का मार्क्स मिलते हैं. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. और अगर फिगर एक बार ड्रॉ कर लिया देन सॉल्यूशन करते तो बहुत ही सिंपल होता है. ठीक है, तो फिगर अच्छे से बनाइएगा, शो कीजिएगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा एंड देन सॉल्व कीजिएगा. डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now this is the question number 3rd. The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. Angle of elevation बन रहा है एरोप्लेन का ग्राउंड पर किसी ग्राउंड पॉइंट से, that is 60 degree. After a flight, मतलब कुछ देर फ्लाइट मूव करने के बाद और 15 सेकेंड मीन्स कितने देर के बाद, 15 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री. उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, अगेन 30 डिग्री. इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, अगर एरोप्लेन की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इट इज कांस्टेंट 1500 root 3 meter, then find the speed of the plane in kilometer per hour. Then you have to find the speed of plane in kilometer per hour. तो इसके लिए स्पीड निकालने के लिए टाइम तो हमें पता है, टाइम इज गिवन टू यू 15 सेकेंड. ठीक है, स्पीड निकालने के लिए हमें दो चीज की नीड होती है. फर्स्ट डिस्टेंस एंड सेकेंड टाइम. टाइम इज गिवन टू यू, टाइम आपको पता है तो आपको क्या फाइंड करना है, केवल डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, यानी कि जो एरोप्लेन एक जगह से बढ़ के दूसरी जगह गया है उसका क्या डिस्टेंस है वो आपको पता करना है. क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द फिगर. तो पहले हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे. मान लीजिए यहाँ कहीं एरोप्लेन है. दिस इज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, दैट इज 1500 root 3 meter फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, नाउ किसी एक पॉइंट से एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है बेटा? मान लीजिए यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये एरोप्लेन का 60 degree. 60 डिग्री बन रहा है. ओके, देन अब क्या है, आफ्टर 15 सेकेंड एरोप्लेन यहाँ से मूव करते 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 यहाँ तक आता है. इस पॉइंट से उस एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना डिग्री बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री. 30 degree. 30 degree. Okay, this height is given to you 1500 root 3 meter. 1500 root 3 meter. ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको
Again, I am going to explain the figure. The height of the aeroplane is AC. Aeroplane कहाँ पर है? Point A पर. From the ground, any point O is here. O से angle of elevation aeroplane A का 60 डिग्री बन रहा है. ठीक है? Okay. After 15 सेकेंड एरोप्लेन आपका यहाँ पर है. After 15 सेकेंड एरोप्लेन B पर आ जाता है. Then same point O से एंगल ऑफ एलिवेशन एरोप्लेन का 30 डिग्री बनता है. ओके. देन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ CD. तो आपको CD का डिस्टेंस फाइंड करना है विच इज इक्वल टू AB, जो कि AB के इक्वल है. और एरोप्लेन सेम हाइट पर मूव कर रहा है, यानी कि 1500√3 मीटर पूरा सेम हाइट है. फिगर आपको बेटा अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. फिगर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लास 10 नो प्रॉब्लम. देन आई एम अच्छा ठीक है. एरोप्लेन एक एरोप्लेन है A, दैट इज ऑन पॉइंट A. पॉइंट A पर है एरोप्लेन A, जो कि ग्राउंड से यानी ग्राउंड C से 1500√3 मीटर पर है. ओके. देन कोई दूसरा पॉइंट है पॉइंट O. पॉइंट O से एरोप्लेन A का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है. ठीक है. देन आफ्टर 15 मिनट 15 मिनट के बाद आप 15 सेकेंड आफ्टर 15 सेकेंड एरोप्लेन जो है वो पॉइंट A से पॉइंट B पर आता है. आफ्टर 15 सेकेंड दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन. आफ्टर 15 सेकेंड एरोप्लेन पॉइंट A से पॉइंट B पर आता है एंड द हाइट इज सेम. हाइट क्या है? कांस्टेंट है, 1500√3 मीटर. देन पॉइंट O से अगेन सेम पॉइंट से उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन B का 60 डिग्री बनता है. ठीक है. देन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोथ द पॉइंट्स ऑफ द एरोप्लेन. मतलब जो पहला पॉइंट था वहां से और वहां जो लास्ट उसका पॉइंट है एरोप्लेन का, वहां तक का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. बिकॉज जब तक आप डिस्टेंस नहीं फाइंड करोगे तब तक आप स्पीड कैसे फाइंड कर पाओगे? टाइम इज गिवन टू यू 15 सेकेंड. डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ही तो स्पीड फाइंड कर पाएंगे. क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? नाउ द आई थिंक द फिगर इज आल्सो क्लियर टू यू. एनी डाउट? No. No, ma'am. Now angle COA 60 degree and angle DOB is equal to 30 degree is given to you, and AC is equal to BD is equal to 1500√3 meter. It is also given to you. Then in triangle OCA. ओके. पहले हम OC का निकालेंगे डिस्टेंस. कॉट क्या होता है? कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट 60 डिग्री बेस अपॉन कॉट की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन AC की वैल्यू आपको गिवन है. AC क्या है? 1500√3 कैंसिल. OC is equal to 1500 मीटर. OC आ गया हमारा 1500 मीटर. नाउ OD फाइंड करेंगे. अब OD कैसे फाइंड करेंगे? इन ट्रायंगल OD B लेंगे. OD एंड B लेंगे. इन ट्रायंगल ODB OD upon BD is equal to cot 30 degree. OD is equal to 1500
√3 और 30 की वैल्यू इट्स ऑल्सो √3. OD is equal to 1500 into 3 because √3 multiplied √3 becomes 3. OD is equal to 15 into 3 it becomes 4500 meter. Now students, O से D का डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? इट्स 4500 मीटर. ठीक है, अगर हमें C से D निकालना होगा, C से D का डिस्टेंस निकालना होगा तो O से D में से O से C को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो C से D का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 20,000. CD is equal to OD minus OC. मीटर. यानी कि जो एरोप्लेन है वो 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? एरोप्लेन 3000. Now it's very simple to convert into a speed. Speed इसका निकालना बहुत ही easy. Speed is equal to distance upon time. डिस्टेंस क्या है? 3000 मीटर और टाइम क्या है? 15 सेकेंड. नाउ बट आपको आंसर किसमें फाइंड करना है बेटा? आंसर आपको किसमें फाइंड करना है? इन किलोमीटर पर आवर. करेक्ट, आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है ना. क्वेश्चन देखिए, इफ द फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर. आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है. सो स्पीड को अगर हम निकालेंगे इज इक्वल टू 3000 अपॉन 15 into 60 upon 1000. So the speed of aeroplane is 720 kilometer per hour. It's clear to you students? Yes, ma'am. एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की नीड है.